Jai Hind students, in this video I am going to discuss with you all the classification of algae. In the previous video or in the live class I have discussed you the general features of algae, its thallus organization, its sexual characters and asexual reproduction, also its modes of reproduction, its habitat. Now come to the classification of algae. Algae are classified on the basis of different types of pigments that are present in their body. एल्गी का जो क्लासिफिकेशन है उसमें हम सबसे ज़्यादा यह ध्यान देते हैं कि उसमें क्लोरोफिल कौन सा है. वी ऑलरेडी नो दैट एल्गी इज़ अ डिवीज़न ऑफ प्लांट किंगडम. इट मीन्स दे मस्ट बी फोटोसिंथेटिक. इसका मतलब कि वो फोटोसिंथेटिक हैं, और यदि फोटोसिंथेटिक हैं तो उसमें क्या होगा, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होंगे. एल्गी में वेरियस टाइप ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स पाए जाते हैं, और इसी वेरियस टाइप ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स के आधार पर और भी बहुत सारे कैरेक्टर्स के आधार पर, जैसे उनके अंदर का जो फूड स्टोर्ड मटेरियल है वो कैसा है, उनका जो क्लोरोप्लास्ट है उनका शेप कैसा है, क्लोरोप्लास्ट में कौन सा डोमिनेंट क्लोरोफिल पिगमेंट्स हैं, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं, इस बेसिस पर एल्गी को 3 मेन क्लास में बांटा गया है. हायर क्लासेस में जब आप बॉटनी को ऑप्ट करेंगे तो एल्गी डिटेल में पढ़ेंगे, जिसमें बहुत 3 ही नहीं 10 से 11 क्लासेज में इनको बांटे गए हैं. लेकिन आप क्लास 11 में, जो कि एक बेसिक आपको क्रिएट कर रहा है, क्लास 11 इज जस्ट अ बेसिक making you fundamental, making you foundation of the higher scientific aptitude. Here you have to study only 3 main classes of the algae, which forms the major group of the algae, and these classes are classified on the basis of the various pigments found in that algae, what are the food stored material of that algae, what is the cell composition of that algae, and mode of reproduction. So the first classification here we are going to discuss is the chlorophyceae. Already you know that chlorophyceae plant. In this is a group of algae in which chlorophyll A and B dominants. इसमें जो क्लोरोफिल A और B डोमिनेंट करता है क्लोरोफिल पिगमेंट में. क्लोरोफिल पिगमेंट को भी अगर आप स्पेशल वे में पढ़ेंगे, और इसी क्लास में आगे के चैप्टर्स में फोटोसिंथेसिस जब आप पढ़ेंगे उसमें देखेंगे कि क्लोरोफिल डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, और मीन्स उनका केमिकल स्ट्रक्चर डिफरेंट टाइप्स का होता है, और उस डिफरेंट टाइप्स पे उनके कलर शेड्स भी डिफरेंट होते हैं. क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, सी, डी, ई होता है. 5 टाइप के क्लोरोफिल्स होते हैं. Then the whole photosynthetic pigment can be divided into 2, chlorophyll and then carotenes. Carotenes are also photosynthetic pigment, but they are accessory pigments. They are not major pigment to absorb the photosynthetic light. Then in carotenes you will study xanthophylls, carotenoids. Xanthophylls are also several types, fucoxanthin. And then carotenes is also carotenoids is beta carotene, alpha carotene. So these all are different types of photosynthetic pigment, जो आप ये जो प्लांट किंगडम पढ़ेंगे उनके डिवीज़न में इनका पूरा वेरिएशन मिलेगा. हायर प्लांट्स में भी क्लोरोफिल ए एंड बी ही ज़्यादा अमाउंट में पाए जाते हैं, इन द सेम वे लाइक क्लोरोफाइसी. क्लोरोफाइसी में जो प्री डोमिनेंट फोटोसिंथेटिक पिगमेंट हैं वो क्लोरोफिल ए and B है. Here you can see that chlorophyll A and B is predominant character, predominant photosynthetic pigment in the chlorophyceae. Pigments are localized in definite chloroplast. Already you know that chloroplast is an organelle which consists of photosynthetic pigments. क्लोरोप्लास्ट एक ऑर्गेनल है जो कि केवल प्लांट में पाया जाता है, और इसमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं. क्लोरोफाइसी में सेवरल जो शेप ऑफ क्लोरोप्लास्ट होता है वो सेवरल टाइप्स के होते हैं, और इस बेसिस पे भी क्लोरोफाइसी में जो ऑर्गेनिज्म है उनका नाम रखा जाता है. जैसे क्लेमाइडोमोनास हुआ कप शेप्ड है, स्पाइरोगाइरा हुआ स्पाइरल शेप्ड है. तो एल्गी का क्लासिफिकेशन में क्लोरोप्लास्ट,
the pigments, all these play very much important in the classification of algae. So what are the characters of chlorophyceae? They are commonly called as green algae, and they are green in color because they have predominant photosynthetic pigment, that is chlorophyll A and B. Their body organizations differs from ranges from unicellular colonial to filamentous, मीन्स यूनिसेलुलर रहेंगे, एक सेल के भी बने हुए रहेंगे, लाइक क्लेमाइडोमोनास, फिलामेंटस रहेगा और इसमें कप सेप्ट आपका क्लोरोप्लास्ट है और वो मात्र एक सेल का बना हुआ है. कोलोनियल वॉल्वॉक्स को मान लीजिए बहुत सारे छोटे छोटे विदाउट फिलामेंटस और क्लेमाइडोमोनास लाइक ही शेप रहता है, बट इसमें फिलामेंट नहीं रहते हैं और ये कॉलोनी में पाए जाते हैं, डैट इज़ कॉल्ड एज वॉल्वॉक्स. स्पाइरोगाइरा हो गया आपका, जिसमें स्पाइरल सेप्ट आपका क्लोरोप्लास्ट रहेगा, शेप ऑफ द क्लोरोप्लास्ट इज स्पाइरोगाइरा. ये फिलामेंटस है, यूलोथ्रिक्स फिलामेंटस है. दीज ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ एल्गी is given in your NCERT book and they belongs to chlorophyceae. Now the chloroplast may be discoid, plate like, reticulate, reticulate means ribbon like, reticulate, cup shaped, spiral, ribbon shaped. Reticulate means net like. Spiral, most of the members have one and more. And now come to their storage body, storage chemical substance. We all know that plant stored their food materials in the form of starch. Now these chlorophyceae stored their food material in the form of proteinous substance called as pyrenoids. ये important term है, आपको इसको याद करके रखना है. क्लोरोफाइसी में जो आपका प्रोटीन बेस्ड इट कंटेंट्स पायरोनाइड्स, क्लोरोप्लास्ट के अंदर रहता है और ये एक प्रिजर्व फूड मटेरियल है और उस स्पेस को पायरोनॉइड्स कहते हैं, जिसमें प्रोटीन बेस्ड बिसाइड्स स्टार्च, मीन्स स्टार्च एंड प्रोटीन एज अ रिजर्व फूड मटेरियल या एक पर्टिकुलर शेप में रिजर्व रहता है, एंड दैट शेप एंड दैट एरिया इज कॉल्ड एज पायरोनॉइड्स. उस स्पेस को हम लोग, उस जगह को पायरोनॉइड्स कहते हैं, उस स्पेशल स्टोरेज बॉडी को, दैट इज लोकेटेड इनसाइड द क्लोरोप्लास्ट, जो कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर सिचुएटेड रहता है. जब आप क्लेमाइडोमोनास का डायग्राम देखेंगे तो उसमें डिटेल से ये पायरोनॉइड्स का स्ट्रक्चर दिखेगा, एंड दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट पॉइंट फॉर योर एग्जाम. सम एल्गी ऑल्सो स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ वाइल्ड ड्रॉपलेट्स. वाइल्ड ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में भी कुछ एल्गी अपना फूड प्रिजर्व करके रखते हैं. रिजिड सेल वॉल रहता है, इनर सेल वॉल सेलुलोज एंड आउटर सेल वॉल पेक्टोज का बना हुआ रहता है. So these all are your general features of chlorophyceae. Come to the vegetative, its reproductive phase, reproductive nature. Vegetative reproduction takes place by fragmentation as usual. बॉडी दो पार्ट में टूटेगी एंड दोनों आपका दोनों आपके एक सेपरेट मैच्योर एल्गी में डेवलप करेंगे, दैट इज़ कॉल्ड एज फ्रेगमेंटेशन. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो जू स्पोर्स से होगा. जू स्पोर्स वो स्पोर्स है, एसेक्सुअल स्पोर्स जो मोटाइल होता है, जिसमें फ्लैजेला प्रेजेंट रहता है. नाउ मैंने पहले ही बताया है ऑन द बेसिस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे, ऑन द बेसिस ऑफ द शेप एंड साइज ऑफ द गैमेट्स, द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, द गैमेट्स फॉर्म्ड इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैन बी आइसोगैमस, एनाइसोगैमस एंड oogamous. When both the gametes in sexual reproduction are of similar shape and size and both are motile, then they are called as isogamous. This is the most primitive type of gametes. ये सबसे primitive type है gametes का. मतलब जब एंशियंट लिविंग ऑर्गेनिज्म गैमेट्स बनाना स्टार्ट किए होंगे तब इस प्रकार की गैमेट बनती थी, जिसमें दोनों गैमेट बिल्कुल सिमिलर दिखते थे और मोटिलिटी रहती थी. जैसे फॉर एग्जांपल अभी जैसे आप एक मैंगो को देखिए तो पॉलन ग्रेन्स में मोटिलिटी रहती है, वो मूव करता है, और ओवरी जो है वो स्टेबल हो गया, ओवम ओवरी के इनसाइड में स्टेबल हो गया, मूव नहीं करता है, और शेप में भी डिफरेंस आ जाता है. सो when the gametes are of similar shape and size, like if both male and female gamete are motile and they have flagella and they are of similar shape and size, then they are called as isogamous. then इसको हम लोग कहेंगे isogamous. okay,
when the gametes are of similar shape and size, dissimilar shape and size and both are motile, दोनों मोटाइल रहेंगे लेकिन फीमेल गैमेट लार्जर हो जाएगी एंड मेल गैमेट छोटा हो जाएगा, देन इट इज़ कॉल्ड एज एनाइसोगैमस। मीन्स क्या है, जो फीमेल गैमेट रहेगी वो बड़ी रहेगी एंड इट विल बी मोटाइल ऑल्सो, एंड जो मेल गैमेट रहेगा वो छोटा रहेगा एंड इट विल बी मोटाइल ऑल्सो। शेप में डिफरेंसेस आ जाएंगे, मोटिलिटी में डिफरेंस नहीं आएगा, शेप में डिफरेंस आ जाएगा और दिस इज कॉल्ड एज एनाइसोगैमस। Now come to the oogamous, that is most advanced one and it is present in all advanced living organism including us and including higher plants also like gymnosperm, angiosperm। इसमें क्या होगा, गैमेट्स जो होंगे वो मोटिलिटी में डिफरेंस आ जाएगा। फीमेल गैमेट सिंपल राउंड स्ट्रक्चर एंड फ्लैजिला लॉस कर जाएगी, फ्लैजिला एब्सेंट हो जाएगा, मोटिलिटी नहीं रहेगा, ये स्टेबल हो जाएगी, स्टैटिक हो जाएगी, और जो मेल रहेगा वो छोटा हो जाएगा और उसमें मोटिलिटी इन द फॉर्म ऑफ फ्लैजिला और टेल लाइक स्ट्रक्चर ये सभी प्रेजेंट रहेंगे। मीन्स मेल गैमेट मोटाइल रहेगा, फीमेल गैमेट मोटाइल नहीं रहेगी, फीमेल गैमेट लार्जर इन साइज होगा और मेल गैमेट स्मॉलर इन साइजर होगा। दीज ऑल आर द प्रूफ ऑफ एडवांसमेंट, how sexual reproduction advances according to the evolution of the living organism. Many reasons why the female ovum or the egg loses its flagella and become stable, I already discussed in live class. So isogamous, anisogamous and oogamous is very important point. You have to differentiate these terms in a tabulation form and it comes in exam also. Some green algal example is Chlamydomonas, Volvox, Eulothrix, Spirogyra, Cara. This is your Chlamydomonas, this is your cup shaped chloroplast. Here it is nucleus, it is pyrenoid situated in the inside the chloroplast. It is the starch storage body which consists of starch and proteins also. This is flagella, this is eye spot, sensitive area that जो कि इसको कलर डायरेक्शन एंड लाइट एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। सो दिस इज सिंगल सेल्ड एल्गी ऑफ क्लोरोफाइसी दैट इज कॉल्ड एज क्लेमाइडोमोनास। ड्रॉ दिस डायग्राम इन योर कॉपी। नाउ दिस इज वॉल्वॉक्स, this is Eulothrix, filamentous Eulothrix, this is Spirogyra. Observe here the shape of chloroplast, here the chloroplast shape is spiral in shape. So these all are examples of Cara. Cara is an advanced example of Chlorophyceae. Cara जो है वो थोड़ा एडवांस है, इसमें मेल एंड फीमेल गैमेट फॉर्मेशन ऑन ऑर्गन बहुत अच्छे से दिखता है ऊगोनियम एंड आर्कीगोनियम और एंथरीडियम के फॉर्म में। तो ये सभी बातें आपको 12th में भी पढ़नी है। नाउ सो दिस इज ऑल अबाउट योर Chlorophyceae. Now come to the next member of your algae, that is called as Phaeophyceae. This group of algae is also called as brown algae. I have already discussed that algae has been divided on the types of chloroplast and on the types of chlorophyll pigments, and pigments give the color to the body. So previous classification, the previous class that was Chlorophyceae is green in color and they are known as green algae. Phaeophyceae are brown in color and they are called as brown algae. और अब आप सोच सकते हैं कि इसका मतलब इसमें जो पिगमेंट्स होगा वो ज़रूर क्लोरोफाइसी से डिफरेंट होगा, क्योंकि इसका शेड कलर जो है वो डिफरेंट आ रहा है, इसमें ब्राउन पिगमेंट आ रहा है। तो ए एंड बी जो है वो ग्रीनिश और ब्लूइश कलर देता है प्लांट बॉडी को, ब्राउन कलर नहीं देता। तो इसका मतलब इसमें दूसरे पिगमेंट्स प्रीडोमिनेंट फॉर्म में पाए जाते होंगे, मतलब ज़्यादा अमाउंट में दूसरा पिगमेंट पाया जाता होगा। नाउ हैबिटेट, primarily in marine habitat, Chlorophyceae primarily in aquatic habitat भी था। Great means simple fresh water. Great variation in size and form, ranges from simple branched filamentous forms ectocarpus to profusely branched kelps. Kelps are group of enormous large algae
स्कैल्प जो है वो पर्टिकुलर एल्गी, एक कोई एल्गी नहीं है, जो भी लार्ज शेप एंड साइज़ का जो एल्गी होता है समुद्र में और वो बहुत इनॉर्मस स्ट्रक्चर बना देता है, स्कैल्प, दैट स्ट्रक्चर, द होल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज स्कैल्प, जो कि बड़े बड़े एल्गी से मिलकर बनता है, जालनुमा स्ट्रक्चर बनेगा जिसमें 100 मीटर्स के साइज के एल्गी उसमें रहेंगे. So different algae which are very large in size and which are enormous in shape are called as scalps. Their photosynthetic pigments are chlorophyll A and C. Chlorophyll A जो है वो मैक्सिमम में रहेगा, क्योंकि फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोफिल ए का जो पिगमेंट है वो मेजर पिगमेंट है. उसके बाद आपका किसी में बी रहेगा, किसी में सी, किसी में डी, किसी में ई, और फिर कैरोटीनॉइड्स में डिफ़र करेगा कि जेंथोफिल्स कौन सा है और कैरोटीन्स कौन सा है. क्लोरोफिल ए मैक्सिममली हर में रहता है क्योंकि ये मेजर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है. ए, सी कैरोटीनॉइड्स एंड आपका जेंथोफिल्स इसमें प्रेजेंट है एज अ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट. कलर में वेरी फ्रॉम ओलिव ग्रीन, आपका ए प्रेजेंट है तो ओलिव ग्रीन टू वेरियस शेड्स टू ब्राउन डिपेंडिंग अपॉन द जेंथोफिल्स पिगमेंट. जेंथोफिल पिगमेंट जो है इसको ब्राउन कलर देने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और उस जेंथोफिल पिगमेंट में स्पेशली फ्यूकोजेंथिन, वो जेंथोफिल पिगमेंट का एग्जाम्पल है आपका फ्यूकोजेंथिन, वो कि स्पेशली इसमें फियोफाइसी में प्रेजेंट रहता है. प्लीज़ रिमेंबर द क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी ऑन द बेसिस ऑफ पिगमेंट्स. ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. किस क्लास में एल्गी के किस क्लास में कौन सा पिगमेंट प्रीडोमिनेंट है, मीन्स डोमिनेंट फॉर्म में पाया जा रहा है. फूड स्टोर्ड मटेरियल is laminarine, means a chemical substance, it is laminarine and mannitol, complex carbohydrate है laminarine and mannitol. Now come to the next, point. Vegetative cells have cellulosic wall cover outside by gelatinous sheet coating called algine, और यही एल्जीन आपको यूजफुल एल्गी में आप पढ़े होंगे. ये कमर्शियली एल्जीन जो है वो यूज होता है जिलेटिनस मटेरियल के रूप में. In addition to plastids, protoplast contains centrally located vacuole and nucleus. Plant body is differentiated into holdfast attached to substratum. देखिए कैसे एल्गी धीरे धीरे अब थोड़ा एडवांस की ओर बढ़ रहा है. क्लोरोफाइसी में जो मेंबर्स थे वो मैक्सिममली यूनिसेलुलर फिलामेंटस या उनमें ऐसा होल्ड फास्ट और स्ट्राइप लाइक लीफ लाइफ स्ट्रक्चर का डेवलपमेंट नहीं हुआ था. लेकिन ये जो फियोफाइसी है इसमें थोड़े एडवांस एल्गी आए और थोड़ा शेप का जो डिफ्रेंशिएशन होना स्टार्ट हुआ. रूट लाइक स्ट्रक्चर आ गया जो कि होल्ड फास्ट, नॉट ट्रू रूट, रूट लाइक स्ट्रक्चर होल्ड फास्ट आ गया. स्टेम लाइक बॉडी स्ट्राइप आ गया. लीफ लाइक स्ट्रक्चर फॉन्ड आ गया. ओके, दीज आर जस्ट लाइक स्ट्रक्चर, नॉट ट्रू लीफ, नॉट ट्रू स्टेम, नॉट ट्रू रूट. उनके जैसा कुछ कुछ पार्ट्स इनके बॉडी जो है वो डिफ्रेंशिएट हो गए. सो दे आर बेटर और एडवांस देन द मेंबर्स ऑफ क्लोरोफाइसी. लीफ फोटोसिंथेटिक, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इनका फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होगा. फिर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ कोर्स बाई फ्लैजेलेट जू स्पोर्स के द्वारा होगा. एंड दे हैव अनइक्वल लैटरली अटैच्ड फ्लैजला, मीन्स दे हैव जू स्पोर्स लाइक दिस. पियर सेप्ड का इनका जू स्पोर्स होगा. और अनइक्वल लैटरल मीन्स यहाँ इनका फ्लैजला नहीं होगा, जैसे क्लोरोफाइसी में टिप पर फ्लैजला होता था. इनका फ्लैजला जो होगा पहला तो ये पियर सेप्ड रहेंगे और लैटरली और अनइक्वल रहेगा. मीन्स एक फ्लैजला जो है छोटा और एक फ्लैजला बड़ा, और लैटरली इनर्शन होगा उनका, मीन्स वो लैटरली फ्लैजला निकला रहेगा, वो टिप पे नहीं रहेंगे लाइक क्लोरोफाइसी. सो दिस इज डिफरेंस. Gametes are pear-shaped with two laterally attached flagella. Common brown algae are Ectocarpus, Fucus, Dictyota, Sargassum, Laminaria. I repeatedly told you that and suggest you that at least you have to remember all the examples that is given in NCERT book. इसको तो आपको छोड़ना ही नहीं है. सारे एग्जाम्पल्स को आप लिख कर विथ करेक्ट स्पेलिंग याद कीजिए. और ये भी ध्यान दीजिएगा कि ऑल दीज आर बॉटनिकल नेम. जब आप इसको कॉपी में लिखिए हर नेम को अंडरलाइन करना है.
लेमिनेरिया, इक्टोकार्पस, फ्यूकस, डिक्टियोटा, सारागैसम, दीज ऑल आर फियोफाइसी। ये सभी क्या हैं? आपके ब्राउन एल्गी हैं, फियोफाइसी हैं। कैरेक्टर्स जो है, और एक बात इसमें छुटी है कि इनका जो कंट्रोल स्टोर्ड फूड मटेरियल है वो मैनिटॉल है और लेमिनेरिन है, शायद मैं बता दी हूँ। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, सेल वॉल सेलुलोज और एल्जीन का बना हुआ है। इसके लास्ट में एनसीईआरटी में जो टेबल दिया हुआ है उस टेबल को आप शॉर्ट फॉर्म में केवल पढ़ लेंगे तो इतना ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत, आपको फिर से दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। आई एम एक्सप्लेनिंग बिकॉज आई हैव टू मेक यू अंडरस्टैंड। पहले मुझे आपको समझाना है, जब आप एक बार समझ लें तो रिवीजन में केवल आप टेबल 3.1 एनसीईआरटी में जो दिया हुआ है मात्र उसको देखें। एग्ज़ाम में उसी को सेंटेंस बना के लिख दीजिएगा, आपका सारे का कैरेक्टर्स हो जाएगा। ओके, so this is all about Phaeophyce, that is here is ficus, see here bladder, इसको वाटर में रहने में, फ्लोट करने में हेल्प करता है। दिस इज फॉन्ड लीफ लाइक स्ट्रक्चर, और इसके नीचे इनका रूट लाइक स्ट्रक्चर रहता है, दैट इज स्ट्राइप। डिक्टियोटा, कैसे देखो इसमें रूट लाइक स्ट्रक्चर आ गया, दिस डिक्टियोटा। डायग्राम आप कॉपी में बनाइएगा। और ये स्टेम एंड रूट लाइक लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स आ गया, दैट इज फॉन्ड। देन आपका आ गया, सॉरी, लीफ फॉन्ड। और ये आपका ये जो स्टेम लाइक स्ट्रक्चर है वो आपका स्टाइप, एंड दिस रूट इज होल्ड फास्ट। तो ये सभी रूट, स्टेम एंड लीफ लाइक स्ट्रक्चर धीरे धीरे डेवलप होना शुरू किए। मीन्स थैलस ऑर्गेनाइजेशन से डिफ्रेंशिएटेड प्लांट बॉडी की और डेवलपमेंट शुरू हुआ। Now Sargassum it is, Laminaria. So these all are examples of Phaeophyce. Now come to Rhodophyce. These algae are also called as green algae, and these algae are most advanced group of algae. हम लोग जब भी क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं तो प्रिमिटिव से एडवांस की ओर पढ़ते हैं, तो आप समझ लीजिएगा कि जो पहला ग्रुप पढ़ते हैं वो सबसे एंशिएंट ग्रुप रहता है और धीरे धीरे हम लोग एडवांसमेंट की ओर बढ़ते हैं। रोडोफाइसी जो है एल्गी, वो मेंबर्स, इनके मेंबर्स को कॉमनली रेड एल्गी कहा जाता है। इट मीन्स कि इसमें जो पिगमेंट होंगे वो पिगमेंट्स इसके प्लांट बॉडी को रेड कलर दे रहे हैं। उसी तरह पिछले वाले फियोफाइसी को ब्राउन कलर दे रहे थे, डैट वाज ड्यू टू स्पेशली फ्यूकोजेंथीन, जेंथोफिल, एग्जाम्पल ऑफ जेंथोफिल। एंड उसके पहले वाले ग्रुप को दैट इज क्लोरोफाइसी, वो ग्रीन कलर था, डैट इज मेनली ड्यू टू क्लोरोफिल ए एंड बी। सो हेयर प्रेजेंस ऑफ रेड पिगमेंट आर फाइकोइरिथ्रीन के कारण ये रेड दिखता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मेजोरिटी ऑफ रेड एल्गी आर मराइन, ये सभी जो एडवांस्ड एल्गी हैं वो मराइन ही होते हैं, समुद्र के तल पे पाए जाते हैं एंड प्रीडोमिनेंट प्रोड्यूसर्स हैं। ओशियन के मेन प्रोड्यूसर्स ये सब एल्गल ग्रुप हैं। मे बी प्रेजेंट एट रीजन क्लोज टू द सरफेस ऑफ वाटर, ये सरफेस ऑफ वाटर पे भी प्रेजेंट रहते हैं, एंड एट अ ग्रेट डेप्थ इन ओशियंस, और ओशियन के ग्रेट डेप्थ में भी रहेंगे ये रोडोफाइसी, क्योंकि इनका जो पिगमेंट है रेड कलर, उनमें ये कैपेसिटी है कि वो सनलाइट के लेस मतलब हाई वेवलेंथ को भी और लेस फ्रीक्वेंसी सनलाइट को भी एब्जॉर्ब कर सकते हैं। सो रोडोफाइसी कैन सर्वाइव एट द ग्रेटर डेप्थ ऑफ द ओशियन, ओशियन के ग्रेटर डेप्थ पे भी रोडोफाइसी सर्वाइव कर सकता है, क्योंकि उनका पिगमेंट ऐसा है कि वो सनलाइट के कम मध्यम सनलाइट को भी एब्जॉर्ब पकड़ ट्रैप कर सकते हैं। सो दीज आर, ये क्वेश्चन भी आपके एनसीईआरटी में और एग्जाम में आता है, विच ग्रुप ऑफ एल्गल इज फाउंड एट द ग्रेट डेप्थ, रोडोफाइसी, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, देन द आंसर विल बी रोडोफाइसी। मोस्टली मल्टीसेलुलर, ये आपका जो एल्गी है वो काफ़ी डेवलप हो चुका है, ये मल्टीसेलुलर होगा, इसमें कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन बनता है। पोस्ट फर्टिलाइजेशन के बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इसमें एक दूसरे टाइप का एक बॉडी ऑर्गेनाइजेशन बनता है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन, जो कि इसके पहले वाले ग्रुप में नहीं बनता है। मतलब अब देखिए कि इसके बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में कॉम्प्लेक्सिटी धीरे धीरे आ गई। इसमें आइसोगैमस रिप्रोडक्शन नहीं होगा, इसमें ऊगैमस होगा या एनआइसोगैमस होगा, क्योंकि ऊगैमस सबसे एडवांस है और ये एडवांस ग्रुप ऑफ एल्गल है। इसी तरह इसमें जो आपके जो इसका पिगमेंट देखिए वो एकदम स्पेशल टाइप का आर फाइकोइरिथ्रीन है। और सो
complexity increases in the rhodophyceae. Reserved food material is your cellulose, pectin, polysulfate esters. Reserved food material जो है वो फ्लोरोडियन स्टार्च है, जो कि एमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजेन की तरह इनका स्ट्रक्चर है. So they are fragmentation. So this is, and sexual reproduction is oogamous accompanied by complex post fertilization development. जैसे गैमेट्स मिलेंगे और जाइगोट बनेगा तो उसके बाद इनका एक स्टेज आता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन के बाद, जो कि काफ़ी एक कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाता है. इसके बारे में आपको हायर क्लासेस में पढ़ने हैं जब आपको कंप्लीट रोडोफाइसी को के साइकिल को पढ़ना होगा तब. अभी आप बस यही जानिए कि इसमें कम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्टेज का फॉर्मेशन होता है एंड नथिंग मोर. Please stick to all the concept that is given in NCERT. It is more than enough of this level. आपके 11वीं के लिए 11th के लिए ये more than enough है. आप एक एक लाइन को समझ लेंगे तो आप एक पन्ना लिख सकते हैं on the basis of NCERT. So stick to NCERT. आप यहाँ पे हमारा एल्गी का क्लासिफिकेशन जो है वो फिनिश हुआ. एल्गी इज क्लासिफाइड इनटू 3 क्लास. नाउ कंसंट्रेट हेयर टू योर टेबल. पॉलीसिफोनिया इसका एग्जाम्पल है. पॉलीपोरफाइरा, पॉलीसिफोनिया, ग्रासिलेरिया, जो जिसको आपने पढ़ा है एग्जाम्पल में. एल्गल यूज में ग्रासिलेरिया एंड गैलीडियम ये सब यूज होता है आपके अगर बनाने में यूज, वही ये सब एल्गी है. गैलीडियम देखिए रेड और ये ब्राउनिश कलर है. एंड दिस टेबल इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. जब आप मेरे इस वीडियो को एक बार देखकर समझ जाएं तो केवल इस टेबल से ही बार बार रिवीजन करिए, इससे आप सारी बातें समझ जाएंगे. एंड इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्ज़ाम. हेयर ऑल द 3 डिफरेंट क्लासेज ऑफ द इज़ गिवन. सारे डिफरेंट क्लासेज यहाँ पे दिए हुए हैं. ओके इस पूरे डिफरेंट क्लासेज में फिर कॉमन नेम उनका दिया हुआ है कि इनको कॉमनली क्या कहते हैं. लाइक क्लोरोफाइसी को ग्रीन एल्गी कहते हैं. इनमें मेजर पिगमेंट क्या है, क्लोरोफिल ए एंड बी है. स्टोर्ड फूड मटेरियल क्या है, स्टार्च है. सेल वॉल किससे बना हुआ है, सेलुलोज से. इनके जाइगोट्स, इनके जू स्पोर्स में फ्लैजला कैसे रहते हैं, सॉरी जाइगोट्स नहीं, जू स्पोर्स में फ्लैजला का नंबर कैसा रहता है, 2 to 8. अनइक्वल एंड एपिकल. एपिकल मैं बताई थी कि अगर ये जू स्पोर्स है तो इसके एपेक्स पे रहेगा और मे बी 2 एंड मे बी मोर देन 2 इन नंबर रहेगा. 8 भी हो सकता है, 2 से 8 तक. एंड इक्वल रहेगा. सारे फ्लैजले कैसे रहेंगे, इक्वल रहेंगे. और एट द एपेक्स फ्रेश वाटर में रहता है, ब्रैकिश वाटर मीन्स गंदे पानी में भी रहता है और साल्ट वाटर में भी रहता है. नाउ कम टू योर फ्यूओफाइसी. इसको ब्राउन एल्गी कहते हैं. इसमें प्रीडोमिनेंट पिगमेंट क्लोरोफिल ए, सी एंड फ्यूकोजेंथिन है. इस फ्यूकोजेंथिन को जरूर याद रखिएगा. मैनीटॉल एंड लेमिनरीन स्टोर्ड फूड मटेरियल है, जैसे इसमें स्टार्च है तो इसमें ये है. सेलवॉल इसका सेलुलोज एंड एल्जीन का बना हुआ है. 2 एंड अनइक्वल लैटरल फ्लैजला है. मैं सेप बताई थी कि जैसे ये जाइगोट है, सॉरी मैं बार बार जाइगोट बोल रही हूँ, ये जू स्पोर है और इसके लैटरली में 2 अनइक्वल फ्लैजला रहेगा. ये पहचान है आपकी फ्यूओफाइसी की. फ्रेश वाटर, ब्रैकिश वाटर, साल्टी वाटर में रहता है. नाउ कम टू द रोडोफाइसी. ये सबसे एडवांस है, कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है इसमें. इसको रेड एल्गी कहते हैं. क्लोरोफिल ए, डी एंड फाइकोइरिथ्रीन ये जरूर याद रखिएगा. फाइकोइरिथ्रीन और ए आप देखना सब में कॉमन है क्योंकि ए जो है वो मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है. बाकी जो बी, सी, डी और जेंथोफिल और कैरोटीनॉइड्स ये सभी एसेसरी पिगमेंट्स हैं. किसी में हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं. इनका स्टोर्ड फूड मटेरियल फ्लोरिडियन स्टार्च है. सेल वॉल सेलुलोज का बना हुआ है. फ्लैजला इसमें बिल्कुल एब्सेंट है. और फ्रेश वाटर और साल्टी वाटर में, मराइन वाटर में ये रहते हैं. दिस इज ऑल अबाउट योर एल्गी क्लासिफिकेशन एंड हेयर वी फिनिश द एल्गल. इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट रिवीजन ऑफ द क्लास that is bryophytes. So keep reading the book and remember every table that is given in your book. Remember every botanical name of the plants or zoological name of the plants that is given as example in the book. It is very important. Okay, prepare your notes and remember the table. Okay, thank you.